So, good evening, everyone. Uh, today is Good evening, sir. very good evening. Today is the first day of our formal class that will be starting related to digital marketing. So, at any point in time, in case you guys face any difficulty in terms of understanding or clarity about my voice and all, you guys can stop me. I'll be able to repeat and then we'll go forward. Before we start, since today is the first day, I would like to understand, you guys can open up your video as well, and you can talk about yourself. So one by one, because we are 10 members over here as of now. So we can have a brief introduction about your background, about your details, so that I understand, मैं आप लोगों के बारे में समझ पाऊंगा, and then accordingly I'll be taking up the class, and then जहाँ पे जिस तरह के एग्जाम्पल्स की जरूरत होगी, so I'll be able to guide you guys. So anyone can start. I'm like, we can start from Subjit, or then Arsha or Sangram. Anyone can start. You can open your video. You can speak about, so that we see each other, and then accordingly we'll be able to recognize all of us. आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब 30 seconds 1 minute जैसे भी आप लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं. आपका बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन, योर प्रोफेशन, एनीथिंग प्लीज. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग आदर्शा, राइट? Sir, Adarsh Mukherjee, sir. आदर्श मुखर्जी, या. Uh, sir, I am from Durgapur. ओके. BSc graduate. बीएससी इन व्हाट? BSc, sir. Yeah, bioscience. बायोसाइंस, ओके. सो दुर्गापुर इज फेमस फॉर व्हाट, सर? Sir, steel plant. lot of industries are there in Durgapur. Yes, sir. DSP steel plant. Okay. Subhajit is saying that voice not able to listen the voice. So Subhajit, there is a possibility कि आपका audio में कुछ problem होगा, because I think we are able to converge. अभी मेरी आवाज शायद आदर्श और संग्राम और आप लोग बताएं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? Are you guys able to properly? हाँ सर, clear sir. Clear है, ठीक है. Okay. So good. So क्या plan है आदर्श? What you want to do and why you have joined digital marketing course? Sir, digital marketing course join sir एक ही वजह से किया है, पैसा इनकम करने के लिए. Oh great. और कुछ नहीं. Straightforward, हाँ? Good. मतलब कुछ अगर पॉकेट मनी आए तो ये बेटर होगा, इसलिए. No problem, no problem. तो अभी बीएससी और के बाद क्या? और ये BSc के बाद क्या करना ये चाह रहे हैं? लाइन सब बहुत बेनिफिट में जा रहा है ना जी. मतलब फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा, जी. इसलिए मैंने ज्वाइन किया और कुछ नहीं. चलो, good. No problem. All right. Nice. So Adarsh, you are from Durgapur and you have done your BSc in bioscience, right? बायोसाइंस, यस सर. Okay. और सर जॉब करता था, अभी मतलब अनएम्प्लॉयड ही हूँ. जॉब करता था, छोड़ दिया. किस तरह का जॉब कर रहे थे? जॉब सर इंश्योरेंस कंपनी में कर रहा था, HDFC लाइफ में. ओके. अभी जो फैमिली बिजनेस है वही देख रहा हूँ. क्या है फैमिली का, क्या बिजनेस है? फैमिली का एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मतलब घी कंपनी का, मोटन घी का. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर है. यस सर. चलो good. और सर अजय कंपनी का ब्रास भी है, ये सब करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. चलो गुड. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोमोशनल एक्टिविटी होगा उसी को हम लोग आपके लिए केस स्टडी बनाएंगे, सो दैट आप Yes, उसको हाँ आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ फायदा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. ठीक है. हाँ सर, वो है. और एक मेरा मतलब खुद का इच्छा जो है, जी. मतलब YouTube में कुछ अगर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर कुछ थोड़ा पैसा कमा सकते थे. जी. मतलब कुछ आइडिया नहीं है. नहीं, हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, बट यस एटलीस्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ आपका विजन क्या है, क्यों आपने ज्वाइन किया है. यस सर, यस सर, यस. गुड 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 गुड. नाइस. एनीवन एल्स? संग्राम or Subhajit, Devashish, anyone? Yes, sir. I am Sangram Ghosh. Yeah, Sangram. I am from Nuyati. Yeah.
I am also BSc Bioscience graduate. Okay. And where are you from? I am from Noyati. Okay. Noyati. It's renowned for Banking Chandra Chattopadhyay. Oh, nice. Okay. और आपने बीएससी इन बायोसाइंस कर रखा है आपने? Yes, हाँ सर. ओके. अभी क्या कर रहे हो संग्राम? अभी मतलब थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा है. तो पहले काम करता था वो जूट इंडस्ट्री में. अभी वो बंद है. तो अभी हम सोच रहे हैं कि माने यूट्यूब में कुछ कर सकता है तो करेंगे, इसीलिए ज्वाइन. चलो, गुड गुड. Anyone else? Devashish or Subhajit? I think what happened to Devashish? मैं देवाशीष बोलो और देवाशीष बेचारे छोड़ के चले गए. अरे, maybe some link problem. Okay. Utsav or Bhiku, anyone? I'm like one by one. You guys can start talking about yourself. आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या. हेलो सर. हाँ देवाशीष. सर मेरा नाम देवाशीष बेरा. मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल की हल्दिया से बिलोंग करता हूँ. मेरा बीएससी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया. अभी मैं लॉ सेकंड ईयर में हूँ. लॉ सेकंड ईयर में? हाँ सर. गुड गुड. तो कहाँ बीएससी से लॉ की तरफ कैसे चले गए? यही सर. हाँ, जनरल लाइन में कोई अच्छा सा जॉब ही नहीं है मिल रहा है, इसलिए लॉ पढ़ रहा हूँ. ओके, नाइस. तो आपने ये जैसे देवाशीष आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का आपके बारे में कुछ तो पता चला होगा और आपने ज्वाइन किया, तो क्या इंटेंशन क्या था ज्वाइन करने का? सर मेरा इंटेंशन है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत पैसा कमा रहा है सोशल मीडिया से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. यही है, डिजिटल का जनरेशन आ रहा है. सभी धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा डिजिटल मार्केटिंग. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा वही एक इंटेंशन है कि सोशल मीडिया से कैसे पैसे आ जाए, कैसे बेनिफिट किए जाए, सो दैट बिजनेस ग्रो होगा तो भाई पैसे भी आएंगे. सर. यस सर. चलो, गुड, नाइस नाइस. और कोई anyone else? Sir, my name is Aditi Guha. हाँ, आदित्य गुहा. सर मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ. ओके. सो मेरा फादर का फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है. आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड अबाउट दैट, सो आई वांट टू हेल्प माय फादर इन हर बिजनेस. गुड 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 गुड, नाइस. तो किस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है आपके फादर का? इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफडी, इंश्योरेंस. Okay, nice. All types of financial Good product. Understood. So you guys are basically advisor, and then you advise people to take appropriate financial product for their benefit, right? ठीक है. और बताएं. Through digital marketing process. Right. और कोई बताएं. Aditi has already spoken about. Anyone else want to say? हेलो सर. या इफ्तिखार. हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. हाँ सर, जैसे बताया था उस दिन एक्सपोर्ट से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं. हाँ, राइट. You told me. हाँ, उसी पे जो है फोकस है. और अदर देन बहुत सारा नेटवर्किंग आई हुई है, तो उसका भी मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं जी. और करना है. तो जैसे कैसे लीड मिले जी. असल की चीज वो लीड हासिल करना है. कैसे लीड मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. बिल्कुल. तो ये चीज जानना था, तो बिल्कुल ज्वाइन किए. चलिए, गुड. और किसी का कुछ है? और बताएं कोई. हेलो স্যার, আমি অভিজিৎ ব্যানার্জি. অভিজিৎ, আমি ভালো আছি. আপনি ঠিক আছেন তো? ভালো. আচ্ছা, আমি
একটা পাবলিশিং হাউসে পুরো ক্রেডিবিলিটি নিয়ে কাজ করি। ওকে, এখন এটাকে আমি কাজে লাগাতে চাইছি। আমি বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, তো আমি কন্টেন্ট রাইটিং এ বাংলাতে কিভাবে কি সুবিধা পেতে পারি সেই জন্য আমি এই কোর্সটা করছি। ओके, गुड गुड गुड। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। चलिए, अच्छा है। अब बंगाली में मैं लिखना नहीं जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता हूँ, बट आई विल गाइड यू इन सच ए वे दैट सो दैट आप अपने हिसाब से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप बेनिफिट उठा सकें। विल डू दैट, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ मृदुला, यस मृदुला, टेल मी। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। गुड इवनिंग। স্যার, আমি হচ্ছে মানে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং বা আদার্স নিজেকে প্রমোট করার কি করা মানে কিভাবে করা যেতে পারে, বা आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आपने क्या क्वालिफिकेशन बीएससी पास। बीएससी पास फ्रॉम विच सब्जेक्ट? बीएससी पास जनरल साइंस ग्रुप। ओके, फ्रॉम साइंस ग्रुप। ओके। and ফ্রিল্যান্সিং বা আদার্স কিছু আলাদা কোনো এক্সট্রা আর্নিং সোর্স বা নিজেকে প্রমোট করা বা নিজের লেখা রেডি করা বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এই রিগার্ডিং আমার একটু ইন্টারেস্ট রয়েছে, সেইটা একটু গাইডেন্স পেলে সুবিধা হবে স্যার। ग्रेट ग्रेट, चलो अच्छा है। और किसी का कुछ है? Anyone else want to talk? Sir, Utsav Nandi from the Janagar Mojilpur. Yeah, Utsav, where are you from? Sir, Janagar Mojilpur, Kolkata side. Okay, okay. South Chobbish Pargana. Sir, BSc Agriculture student. আর স্যার এমনি স্যার যেমন স্যার বলেছেন, স্যার আগে স্যার বলেছেন স্যার একটা এনজিও মতো ছোট রয়েছে আমাদের কাজ করা, ওই স্যার কমিউনিটি তৈরি করা আর নিজের যদি কিছু হেল্প হয় এখান থেকে। ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ স্যার। All right, so that's nice. I think Mr. Sobjit has raised hands and he want to say something. I'm not very sure is उनका प्रॉब्लम क्या वॉइस का है, क्या है? I'm not very sure. No voice, who can? Okay. So Mr. Sobjit, still you are facing problem? आपको अभी भी प्रॉब्लम है? Okay, I think his voice is not reaching us. We'll see. ठीक है, और किसी का कुछ है? Sovik or anyone else want to say something? चलो, not an issue. So not to delay much, हम आज का प्रिलिमिनरी सेशन करेंगे कि इंट्रोडक्शन होगा हमारे डिजिटल मार्केटिंग का, क्या क्या हो सकता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है। तो मैं अपना स्क्रीन स्लाइड शेयर करूंगा और उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके देखेंगे और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आप लोगों के सामने मेरा स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चलिए, गुड गुड गुड। सो राइट, सो विल बी टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो कि एक विच इज अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे को आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं एक एक स्लाइड के ऊपर आप लोगों से बात करता जाऊंगा। मे बी हम लोग जानते होंगे नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एडेड पर सेकेंड, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था जब तक कि मैंने गूगल करके और इसका इंफॉर्मेशन नहीं पता किया, बट ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एक एक करके मैं बोलता जाऊंगा और फिर आप लोग भी देखेंगे इसको। तो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एडेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेबसाइट्स लॉन्च्ड एवरी डे, कितने वेबसाइट्स हर दिन लॉन्च होते हैं, नए वेबसाइट्स आते हैं। या आप लोगों को पता है क्या कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन कितने का बिजनेस मेगा सेल डे या स्पेशल सीजन और फेस्टिव सीजन के अंदर एक एक दिन में करोड़ों का बिजनेस वो करते हैं। और क्या आप लोगों को कुछ अंदाजा है, कुछ आइडिया है कि फेसबुक यूजर्स कितने फोटोग्राफ्स हर दिन अपलोड होते हैं,
राइट। तो मे बी आप लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बट मैं इंटरेस्टिंगली आप लोगों को बताता हूँ कि कितना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एडेड पर सेकेंड। आप देखिए 10 to 12 न्यू इंटरनेट यूजर्स एडेड वर्ल्ड वाइड एवरी सेकेंड। तो एक दिन में, एक घंटे में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने नए यूजर्स हर दिन इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट था कितनी नई वेबसाइट्स हर दिन लॉन्च होती हैं। স্যার পিডিএফ শো করছেন নাকি স্যার ফার্স্ট পেজ রয়েছে? নো थिंक আমাদের স্যার ফার্স্ট পেজটাই রয়েছে, ওই জন্য বলছি। आर यू गाइस नॉट एबल टू सी द चेंज इन द स्क्रीन? आप लोगों को दूसरा स्क्रीन दिख रहा है या फर्स्ट स्क्रीन ही दिख रहा है? ये नो सर, फास्ट स्क्रीनिंग देख रहा है। मैं फिर से शेयर करता हूँ। ফার্স্ট স্ক্রিন স্যার দেখা যাচ্ছে শুধু। नो प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर, देखा जाए सेकंड। राइट। सो जैसा मैंने कहा कि हर सेकंड में कितने यूजर्स ऐड होते हैं, तो 10 से 12 यूजर्स हर सेकंड ऐड होते हैं। एक दिन में कितनी वेबसाइट लॉन्च होती हैं? तकरीबन 2 लाख वेबसाइट्स लॉन्च पर डे। यानी जैसे .com, .in इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो एक दिन में 2 लाख वेबसाइट्स लॉन्च होती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन मेगा सेल डे के अंदर कभी कभी जो है करोड़ का बिजनेस करते हैं। इतने करोड़ का बिजनेस करते हैं कि उतना टर्नओवर बड़ी से बड़ी कंपनी का नहीं होता है, राइट। सो दे आर डूइंग वंडर्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। लास्ट एवरी डे 350 मिलियन न्यू फोटोज अपलोड होते हैं फेसबुक के ऊपर। 350 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, राइट। तो 350 350 इंटू 10 लाख उतने फोटोग्राफ्स हर डे फेसबुक के ऊपर अपलोड होते हैं। तो आप देखिए कि कितने लोग एक्टिव हैं फेसबुक के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट स्लाइड पे है कि हम लोग जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रहा है? तो डू यू हैव एन आंसर प्लीज? डू यू हैव अ पैशन? हाँ देखा जाए। राइट। So if you see all of these questions, do you have a passion? हमको कुछ करने की ख्वाहिश है, हम कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ ट्रेंड सेट करना चाहते हैं जैसे फेसबुक और जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन वालों ने किया है, या कुछ अलग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपका इसका आंसर यस है, देन ये एक ही प्लेटफॉर्म अभी जो है सबसे कॉमनली यूज हो रहा है। यानी कोई भी नया इनोवेशन आ रहा है, कोई स्टार्टअप आ रहा है, कोई अपनी नई कंपनी शुरू कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जितना .com वाले बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, वो बिजनेस ग्रोथ दूसरे कंपनीज के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी पूरा वर्ल्ड जो है एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, डिजिटल ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, राइट। और अगर हम देखें कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के, हर मनुष्य के लाइफ को इफेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड वो हर ह्यूमन बीइंग को, हर मैनकाइंड को, हर इंसान को, मेल हो या फीमेल हो, बच्चा है या बूढ़ा है, उसको इंटरनेट ने इन्फ्लुएंस किया है। उसी तरह से क्या है कि इंटरनेट के अंदर जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो जब आप क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हो तो क्रिएटिविटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने क्रिएटिविटी को दर्शा भी सकते हो, ठीक है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट इन फ्यू ईयर्स डिजिटल मीडिया हैज एक्चुअली ब्रॉट इन, डिजिटल मीडिया ने हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे बड़े वैल्यूज और बहुत सारे बड़े चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, वो हमारे एजुकेशन पैटर्न हो सकता है। कोविड के दौरान सारा का सारा स्कूल कॉलेज .com पे आ गया, ऑनलाइन आ गया, डिजिटल लर्निंग पे आ गया। तो ये सारे डिफरेंट चीजें हैं जो कि डिजिटल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमारे लिए, हमको इन्फ्लुएंस किया है, राइट। अब ये अगर मैं आप लोगों से पूछूं 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटी किसको कहते हैं? एनीवन? 3 बेसिक नेसेसिटीज।
यानी रोटी कपड़ा और मकान हम लोग बोलते हैं ना कि 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है, जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता, राइट? नीड सर, नीड। नीड, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट नीड आज की डेट में क्या है? एयर, वाटर, जैसे नॉर्मली कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, एयर वाटर एंड शेल्टर, राइट? तो या फूड वाटर एंड शेल्टर, कुछ भी कह सकते हैं। बट आज के ट्रेंड के अंदर एयर और वाटर तो है ही है, लेकिन आप भूखे रहना पसंद कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मोबाइल और आपके मोबाइल के अंदर डेटा एक्टिवेटेड ना हो, वाईफाई के ऊपर डेटा ना आ रहा हो, तो आप और हम बेचैन हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, बहुत देर से हमारा व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, फेसबुक पे कोई अलर्ट नहीं है, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, राइट? तो अभी जो हमारी हालत है हम सब की, कि इंटरनेट जो 3 नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसके अंदर 3rd नेसेसिटी जो है हमारा वो इंटरनेट है, राइट? तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे लास्ट टाइम भी जब हम लोगों का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन हो रहा था, तब मैंने कहा था कि हमारा दिन शुरू होता है इंटरनेट से। हम जब सबसे पहले सुबह सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, या तो उसका अलार्म बंद करते हैं, या उसका मैसेजेस देखते हैं, उसकी सारी चीजें करते हैं। या फिर जब दिन हमारा खत्म हो रहा होता है तो भी हम इंटरनेट को ही लास्ट यूज करते हैं। तो आप ये देखिए कि जितने कंटेंट हैं इंटरनेट के ऊपर, यानी वो अलग अलग फॉर्मेट के कंटेंट हैं। वीडियो भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकता है, वो वॉइस भी हो सकता है। ये सारा फॉर्मेट है कंटेंट का। तो ये सारा फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर, डिजिटल टूल के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा कंजम्पशन, जितना ज्यादा यूसेज हमारा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा स्कोप बढ़ जाता है डिजिटल एडवर्टीजमेंट का। तो अगर हम इस चीज को ढंग से अगर हम समझें तो इसके अंदर ये समझ में आता है कि जो हमको अभी इस टाइम में, सो व्हाट्स नेक्स्ट इफ यू वांट टू चूज एक्साइटिंग करियर rather than a traditional job, right? So what is the option that you have? You have digital as an option that you can actually make something different, right? तो जब ये थोड़ा सा नेविगेशन के बाद हम ये फिर से रीडिफाइन करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको हैं। तो हर वो काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो हमको अपने टारगेट ऑडियंस और टारगेट कस्टमर से कनेक्ट करे, वो डिजिटल मार्केटिंग है। Anything and everything, whatever the activity that you are doing on digital media platform to connect or reach out your audience, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी काम आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है या व्हाट्सएप है या और भी कोई मीन्स हो सकता है, ये सारी चीजें जो आप टारगेट ऑडियंस तक का, आपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी कुछ काम करते हो, उसको क्या कहते हैं? वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। यानी ओवरऑल हम इस 6 वीक्स के टाइम फ्रेम के अंदर हम ओवरऑल किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्या क्या करेंगे हम। तो उसको हम लोगों ने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है वेबसाइट। अगर आप किसी भी चीज का मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एड्रेस या कंपनी का होना जरूरी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वेबसाइट का होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, राइट? इट्स क्वाइट एसेंशियल दैट वी शुड हैव अ वेबसाइट फॉर आवर बिजनेस। वी शुड हैव वेबसाइट फॉर आवर बिजनेस, और उसके अंदर हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपडेट करते चले जाएं। ओके, तो उस तरह से जाके हमारे लिए क्या होता है कि हमको अपनी वेबसाइट के बारे में वेबसाइट, तो हम लोग इस कोर्स के दौरान कैसे मैं आपको बताऊंगा कि फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, उसके ऊपर कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, ताकि आप अपना एक पर्सनल प्रोफाइल भी बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं, और उसको हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सो दैट आप लोग थॉरोली डिजिटल मार्केटिंग को समझ और सीख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज है वेबसाइट। दूसरा है बिजनेस प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस। तो गूगल भी आपको देता है, जैसे आप देखते हैं कि गूगल मैप के अंदर कोई आप कहीं ड्राइव करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, और गूगल में आप उस कंपनी का या उस लोकेशन का नाम डालते हैं तो आपको लिस्टिंग बता देता है। तो उसको क्या कहते हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि गूगल के ऊपर गूगल माई बिजनेस के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, जो कोई भी बिजनेस या जिसका भी एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, वो इस चीज को क्रिएट कर सकता है। अब गूगल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गूगल के अंदर हम लोग कीवर्ड रैंकिंग, जिसको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गूगल एड,
क्योंकि गूगल में आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप गूगल में सर्च करते हैं तो वहां पे एड्स भी आता है। तो गूगल में एक फ्री है, एक एड है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल का, वो है यूट्यूब। यूट्यूब भी अब गूगल का ही हिस्सा है, यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ गूगल कंपनी। तो यूट्यूब के ऊपर भी जितने एड्स आते हैं वो सारा का सारा गूगल से ही मैनेज होता है। तो हम लोग गूगल के जरिए से ही देखेंगे कि कैसे ये सारे एड्स मैनेज हो जाते हैं, राइट। ये हमारा हुआ वेबसाइट, और इसी के साथ एक और पॉइंट आ जाएगा क्रिएटिव सर्विसेज। इन द सेंस वेबसाइट पे आपको बैनर्स की जरूरत होती है, सोशल मीडिया में आपको बैनर्स की जरूरत होती है, फोटोज की जरूरत होती है। तो कैसे हम अलग अलग डायमेंशन के बैनर्स बनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जिसके अंदर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ये सारी चीजें आती हैं, और इसके आगे भी आता है। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसके जरिए से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी बिजनेस को जाने की क्या जरूरत है। वाई अ कंपनी, फॉर ए कंपनी इट्स इंपॉर्टेंट टू गो ऑनलाइन और गो डिजिटल। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि बिल्डिंग योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड को बना सकते हैं। कनेक्टिंग टू योर कस्टमर्स, आप अपने कंज्यूमर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, नए कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं 24/7 365 डेज, यानी छुट्टी है या नहीं छुट्टी है, कहीं स्ट्राइक है या स्ट्राइक नहीं है, राइट। स्टिल योर डिजिटल प्रेजेंस विल कीप वर्किंग, इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ एनी सिनेरियो। पेंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर पूरी की पूरी लॉकडाउन हो गया, लेकिन क्या वर्कआउट हो रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वर्कआउट हो रहे थे और लोग यूज कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली अपडेट कर सकते हैं, यानी जब भी चाहें, अगर थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप अपने कोई भी चीज चेंज करना, आपको फोन नंबर चेंज करना है, आपको एड्रेस चेंज करना है, आपको कुछ और कंटेंट चेंज करना है, आप इमीडिएटली और क्विकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट विच इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या आपके कस्टमर्स भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन द सेंस उनको अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भी आप तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज 24/7। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, कहीं और से कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो भी कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। तो अब ये है कि कैसे वेब बिजनेस को इफेक्ट डालता है। तो जैसे मैंने कहा कि इससे पहले वाले स्लाइड में था, यू कैन आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर्स, तो वही चीज है कंज्यूमर्स टू फाइंड यू। एक तो ये है कि आपको नया कस्टमर मिल सकता है, दूसरा ये है कि कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स हैं आपके, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट है उस टाइम में वो सर्च करके आप तक पहुंच सकते हैं, राइट। सो दे विल बी एबल टू रीच आउट टू यू व्हेन दे नीड, और जब उनकी रिक्वायरमेंट है तभी आपको वो ढूंढ पाएंगे, राइट। दूसरा ये है कि वो आप तक पहुंच सकते हैं, जब भी उनको कोई अर्जेंसी है तो भी आप तक पहुंच सकते हैं। सपोर्ट्स यू, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड डू बिजनेस ऑनलाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, यू कैन डू बिजनेस ऑनलाइन अक्रॉस द ग्लोब एंड 24/7, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड नहीं है, this is only the way, or this is the most important way of doing business in current scenario। यानी कोई और बिजनेस सिनेरियो आप हो सकता है बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, बट in current scenario digital business is only something which is running and that will keep running, right। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि किसके किसके लिए वेबसाइट नेसेसरी है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया हूं कि इफ अ बार्बर शॉप इज देयर, अ गाय इज हैविंग अ बार्बर शॉप, नाई है, नाई की दुकान है, हेयर कटिंग की दुकान है, उसको भी वेबसाइट की जरूरत है। प्लम्बर की जरूरत है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। आप देखिए कि अर्बन क्लैब जो है, अर्बन क्लैब जो बिजनेस मॉडल है, आप क्या करते हैं, एक
नॉन एजुकेटेड लोग जो प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं या नॉर्मल टेक्नीशियन हैं, वो अपने आप को वहां पे लिस्ट करते हैं और उन सर्विसेज को अपने एरिया के अंदर जब आप सर्च करते हो दे कम, और फिर वो आते हैं आपका सर्विस करके, वो डिजिटली पेमेंट कलेक्ट करके वो फिर चले जाते हैं, राइट। सो ईदर यू टॉक अबाउट बार्बर, यू टॉक अबाउट प्लम्बर, यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट ओनर्स। तो रेस्टोरेंट ओनर के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, स्विगी और जोमेटो हम सबके घर घर पहुंच चुका है, राइट। उसी तरह से ज्वेलरी मेकर है, या फिर मसाज थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, राइट, या फिर योगा ट्रेनर्स हैं, ये सारे के सारे, बेकरी वाले हैं या मेडिकल शॉप है या एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे और करीब करीब सबके सब डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया और वेबसाइट की उनको जरूरत है या डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत है, तभी वो अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे इसको हम कह रहे हैं डिजिटल हब कह सकते हैं आप, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा था जिसके अंदर ऑर्गेनिक सर्च जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि गूगल में अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे जो लिस्टिंग आता है जिसके ऊपर ऐड नहीं लिखा हुआ होता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक, फॉर एवरी क्लिक यू नीड टू पे टू गूगल, उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। उसी तरह से ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग यानी टीवी हो या फोन का है या ये है, तो ये सारा का सारा डिजिटल हब है। तो आज की डेट में जो टीवी है वो भी स्मार्ट टीवी हो गया, एंड्रॉयड टीवी हो गया, तो गूगल पे जब आप ऐड रन करते हैं तो वो आपके टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी आपके एड्स पब्लिश हो सकते हैं बेस्ड ऑन द सब्सक्राइबर्स। आगे ई कॉमर्स देखें, ईमेल मार्केटिंग देखें, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, डिजिटल हब कहलाती हैं। आगे अगर हम देखें तो ये क्या है, डिजिटल जंगल है, और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, यानी उसके और डिटेलिंग हो जाते हैं। तो जब और ज्यादा डिटेलिंग हो जाता है तो आपको समझ में ये आता है कि ओके फाइन, हमको और भी, यानी एक चीज के अंदर बहुत ही कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं एक एक चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आइडिया और अच्छा निकल के आएगा। अब ये देखिए कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर, व्हाट इज मेकिंग अ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि एक आप लोगों में से बताया कि डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर, इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, इससे हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स, तो क्यों, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज फ्यूचर, बिकॉज द वर्ल्ड इज क्विकली बिकमिंग डिजिटल, यानी पूरी की पूरी दुनिया धीरे धीरे करके डिजिटल होती चली जा रही है। आप बताएं, आप लोगों को भी पता होगा और हम सब जानते हैं कि रिलायंस जियो के आने के बाद, जियो के आने के बाद जो डिजिटल पेनिट्रेशन है यानी 4G की जो एंट्री है वो गांव तक बहुत ज्यादा हो गया, राइट। तो वर्ल्ड जो है धीरे धीरे बहुत तेजी से डिजिटल होता चला जा रहा है। पीपल आर कंज्यूमिंग डिजिटल कंटेंट यानी डिजिटल मीडिया जब यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे हर तरह के न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं। कंटेंट है, सीरियल है या एंटरटेनमेंट है, सब कुछ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी घर घर आदमी को भेजना, सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजना, विच बिकम्स टफ डे बाय डे, तो क्या होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप स्लोली डिजिटली ही अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट विल मेक यू इंक्रीज सेल्स। ये वो चैनल है जिसके जरिए से आपका सेल्स इंक्रीज होगा। जब सेल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। न्यू जनरेशन हु हैव ग्रोन अप विद इंटरनेट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितना नया जनरेशन है, जितना यंग जनरेशन है, वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो या तो वो एजुकेशन ले रहे हैं, या तो वो बिजनेस कर रहे हैं, या वो सर्विस दे रहे हैं। ये सारी चीजें इन प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो डिजिटली, यू कैन सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे लाखों के लैक्स एंड लैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स, दे आर डूइंग बिजनेसेस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट। उसी तरह से आप अपने पुराने कस्टमर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो, राइट। सोशल मीडिया के जरिए से आप फीडबैक ले सकते हो कस्टमर से, या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हो, राइट। डिजिटल मार्केटिंग गिव्स द कंट्रोल बैक टू योर कंज्यूमर। आप अपने कंज्यूमर्स को कंट्रोल कर सकते हो इन द सेंस यू वांट
न्यू प्रोडक्ट्स टू बी शेयर्ड विद देम। तो क्या हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से आप अपने कंज्यूमर्स को, आप अपने कस्टमर्स को नया प्रोडक्ट जो भी आप लेके आएंगे आप उनको बता सकते हैं, दे विल बी एबल टू सी इट एंड देन दे कैन रिएक्ट ऑन इट। ठीक है, आप इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंच सकते हो और नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो यूजिंग सोशल मीडिया चैनल्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच इज मेकिंग डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर, राइट। तो ये सारी चीजें, अब कैरेक्टर्स क्या है जैसे हम लोग पहले भी देखे, तो इसके अंदर ये है कि भाई पैसिव एडवर्टाइजिंग से एक्टिव एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं, वहीं पे आप जो एडवर्टाइजर है उससे आप बात करना शुरू कर सकते हैं मैसेंजर के जरिए से। सो इट इज नो मोर कि जैसे प्रिंट मीडिया में आपने कोई एड देख लिया और उसके बाद फिर आप उन तक पहुंचे एंड दे मे रिस्पॉन्ड यू आफ्टर 2 days और 3 days टाइम। जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे वो उन तक पहुंच जाता है, दे मे रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली। कभी भी आप रात के 2 बजे क्वेश्चन पूछिए, अगर उनके पास कोई अवेलेबल है, ऑनलाइन है, तो वो या तो वो उसी वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर जब भी वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू वांट टू टारगेट ओनली मेल मेंबर्स, यू कैन डू दैट। यू ओनली वांट टू टारगेट फीमेल मेंबर्स, यू कैन आल्सो डू दैट। अगर आपको एज ग्रुप के हिसाब से टारगेट करना है कि 18 से 24, 24 से 35, तो आप एज ग्रुप के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। You want to target graduates, you can do that. You want to target undergraduates, you can do that. आप सिंगल पेरेंट को टारगेट करना चाहते हैं या पेरेंट्स विद किड्स, स्मॉलर किड्स, बेबी हैं, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हैं, इन द सेंस डिजिटल पेमेंट करते हैं, या फिर वो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं या दूसरी कंट्री से इंडिया में आके रह रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर सकते हैं, होल स्टेट को, वेस्ट बंगाल को टारगेट कर सकते हैं, कोलकाता को टारगेट कर सकते हैं, या कोलकाता के अंदर के सॉल्ट लेक को है, अलीपुर है, या फिर एस्प्लैनेड का एरिया है, या हावड़ा का एरिया है। आप अलग अलग एरिया को भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। तो क्या है, आपका ऑडियंस बिल्कुल कस्टम है, जहां आपका ऑडियंस है वहीं आप टारगेट करिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्शन इन द सेंस, अगर कोई क्लाइंट आपसे रीच करना चाहता है तो वो भी इंस्टेंट हो सकता है। आपको भी अगर कोई लीड मिलता है तो आप इमीडिएटली उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 10,000 रुपए है तभी आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, 500 रुपए तो भी आप अपना एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हैं। सो इट्स अ क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट कंट्रोल भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना आप बजट स्पेंड करना चाहते हैं उतना ही स्पेंड होगा। जहां आप रोक देना चाहते हैं वहां इंस्टेंटली रुक जाता है, आपका पैसा सेफ रहता है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और किस किस तरह का एडवर्टीजमेंट आप पब्लिश कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बेस्ड कर सकते हैं, इमेज बेस्ड कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, या फिर और भी कोई दूसरा फॉर्मेट है तो उसको भी कर सकते हैं। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, विद सोशल नेटवर्किंग पेजेस इट्स क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। आपको किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि क्वांटिटी की। आप बहुत ज्यादा बल्क आप पोस्ट करना शुरू कर दें, शेयर करना शुरू कर दें, उससे आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा क्वालिटेटिव कैंपेन, क्वालिटेटिव इमेजेस, क्वालिटेटिव कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब चाहें अपने कैंपेन को ऑल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर पब्लिश कर सकते हैं। यानी आपको लगा कि ये कैंपेन चल रहा है और इसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ और इंप्रूव करना चाहिए, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फिर से पब्लिश कर सकते हैं और वो फिर थोड़ी देर के बाद फिर से पब्लिश हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप लोग कर सकते हैं, राइट। ट्रेंड्स अगर हम देखें, ये जो स्लाइड है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग मिक्स, इन द सेंस ईमेल के बारे में है, कंटेंट के बारे में, तो ये धीरे धीरे करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजाइज फोकस ऑन इंक्रीजिंग द रीच एंड विजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग नटशेल में, स्मॉल मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो ये आपके रीच, यानी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकते हैं आपके बिजनेस को। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आप बिजनेस डिजिटली कर पाएंगे
और ये आपके कंपनी का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपके सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाएगा और आप ज्यादा सेल कर पाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। आप देखें ये जो आपके सामने स्लाइड है जिसके अंदर ये मोबाइल की बात कही जा रही है, मोबाइल है, तो आज की डेट में आप देखें कि आप, हो सकता है अभी आप लोगों में से कुछ लोग मोबाइल से ज्वाइन किए हुए होंगे इस ऑनलाइन सेशन को, कुछ डेस्कटॉप से ज्वाइन किए हुए होंगे, बट मोर और लेस धीरे धीरे करते करते क्या हो गया है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एक छोटे मोबाइल के अंदर आ गया है। अनलेस अनटिल आपको कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलते हो, अदरवाइज आप ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग जो कुछ भी आपसे पॉसिबल हो सकता है वो आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से यूज करते हो। और आप क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिजिटल से मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग मूव करते चले जा रहे हैं। So digital media and e-marketing is one of the most exciting industry on this planet as of now. More, the pay scale and the career opportunities in digital marketing are incredible. It is the way of future. अभी धीरे धीरे करके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और करियर ग्रोथ भी है और सैलरी भी अच्छी मिल रही है धीरे धीरे करके। आप ये देखिए कि नियरली 60% ऑफ कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन इज मेड थ्रू ऑनलाइन रिसर्च। आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, आप कहीं पे विजिट करना चाहते हैं, किसी नए शहर में जाना चाहते हैं, या ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, किसी दुकान से कोई रेफ्रिजरेटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप या कोई भी दूसरी चीज खरीदना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं, वहां पे सर्च करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि ओके फाइन, दिस इज गुड प्रोडक्ट और दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। सो बेस्ड ऑन दैट आप इस चीज को डिसाइड करते हो, राइट। ये वाला स्लाइड अगर आप देखिए तो बिफोर कोविड 90% of the shoppers reach online. कोविड से पहले 90% of the people they used to search online, but खरीदने के लिए वो स्टोर्स पे जाते थे। लेकिन कोविड ने क्या किया कि वो सर्च भी ऑनलाइन कर रहे हैं और परचेजिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि कैसे आप लोग अपनी नेसेसिटी के लिए या हम लोग अपनी नेसेसिटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट्स एज वेल, राइट। ये हुआ। सो व्हाट हैपेंड, स्लोली एंड स्लोली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जैसे किराना स्टोर, सब्जी वाला या कोई और, तो ये सब भी धीरे धीरे इस चीज को सीख गए कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बाद या डिजिटल मार्केटिंग में आगे फ्लोरिश करने के बाद किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी हैं, तो यहाँ पे एज एन एनालिस्ट अगर आपको डेटा माइनिंग और डेटा के ऊपर अच्छा कंट्रोल है या उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हैं तो मोबाइल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक अपने आप में करियर है। कंटेंट, जैसे अभी आप लोगों में से किसी एक ने कहा कि भाई कंटेंट के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, भले वो बंगाली लैंग्वेज में करना चाहते हैं, बट इफ यू हैव गुड इन राइटिंग देन यू कैन डू वंडर्स। और कंटेंट मार्केटिंग इज द किंग ऑफ होल डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी। जब तक आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा मार्केट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ओके। उसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस, गूगल पे जब कोई चीज आप सर्च करते हैं तो जो ऊपर वेबसाइट्स आते हैं, टॉप फर्स्ट पेज के अंदर जो वेबसाइट आता है उसी से ज्यादा बिजनेसेस होते हैं, उसी पे आप इंक्वायरीज भेजते हैं। तो कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक कराएं, उसके बारे में भी आप करियर बना सकते हैं, उधर की तरफ भी जा सकते हैं। और सोशल मीडिया, आप फेसबुक के फ्रेंडली हैं, थोड़ा सा ट्रिक बिजनेस एक्यूमेन है या कस्टमर कैसे बिहेव करता है वो थोड़ा सा समझ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए आपको बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामर होने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा बिजनेस सेंस रखते हैं, थोड़ा सा यूजर कैसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है और क्या खरीदने से पहले, बाइंग डिसीजन से पहले किन चीजों का ध्यान रखता है, वो अगर आप समझ लिए तो आप बहुत अच्छे से, आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। क्रिएटिव यानी बैनर्स बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, इन लोगों का तो डिमांड ही डिमांड है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि किया जा सकता है। अब जो डिजिटल मार्केटर हैं उनको किन चीजों की, उनके अंदर किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आप लोग जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हैं उनके अंदर किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए,
तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लर्निंग, बिकॉज हर दिन नया नया चीज आता रहता है। अभी बताएं कि 1 महीने पहले जैसे फेसबुक का नाम फेसबुक था, अब फेसबुक की कंपनी का नाम मेटा हो गया है, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें बहुत ही तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो जब आपके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी होगी कि यानी कोई चीज पता चला उसके अंदर घुस के उसको इंक्वायरी करना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किए, दैट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर एनी डिजिटल मार्केटर। अडॉप्टेबिलिटी यानी नई नई टेक्निक्स, नए नए टूल्स जो भी आए उसको आपको अडॉप्ट करना है। कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा और उसके बाद फिर एक्शनेबल नॉलेज के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी ये डेटा आया, इतने लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है, तो उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। क्रिएटिव थिंकिंग, आपको क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए। कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी इन द सेंस गैजेट फ्रेंडली होना जरूरी है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये आपको इन चीजों से आपको वास्ता पड़ेगा, इन चीजों से आपको कंटिन्यूसली यूज करना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ ऑन दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को इन चीजों से हेट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की क्यूरियोसिटी, दूसरा एडवर्टीजमेंट इतना परफॉर्म कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको एक रिक्वायरमेंट है कि भाई ये चीजें और मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि करियर क्या है इस चीज के अंदर, ठीक है। तो मैं कुछ स्लाइड्स थोड़ा सा क्विकली पुश करूंगा, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूं। जैसे ये अपॉर्चुनिटीज वाले स्लाइड पे हम लोग पहुंचे हैं, इन द सेंस एक कंटेंट राइटर है, उसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो कंटेंट मार्केटर भी हो सकता है, वो कॉपी राइटर भी हो सकता है, और क्रिएटिव जो बैनर्स या वीडियोस बनते हैं उसके ऊपर जो कंटेंट जाएगा उसके लिए भी वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो राइटर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखेगा तभी वो राइटर है। क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत है, सो दैट बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इमेज और टेक्स्ट ये दोनों चीजें देख के ही कोई आदमी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए क्या है कि आपको कंटेंट अगर है तो कंटेंट के ऊपर जा सकते हैं। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप इन द सेंस ऑनलाइन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स की भी जरूरत होती है कि जो ऑनलाइन इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं उसका आंसर कर सके, राइट। तो उस तरह की भी चीजें, यानी आपको इसके अंदर ऑनलाइन बीपीओ के प्रोसेसेस भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्वेरी आंसर करने में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप उधर की तरफ जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा बीपीओ या कॉल सेंटर में तो हमेशा कॉलिंग पे ही रहें, आप चैट सपोर्ट और टेक सपोर्ट के अंदर या इन चीजों के सपोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। उसी तरह से वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, किसी को अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का या टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज है तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स या उस टाइप के लोग हैं जिनको थोड़ा सा डेटा, दे लव डेटा, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो फॉर डेटा एनालिसिस, दे कैन गो फॉर डेटा एंड डेटा प्रोटेक्शन, इन चीजों के ऊपर वो जा सकते हैं। फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि ये डेटा का ये ट्रेंड है तो क्या हो सकता है। तो एक एक चीज का एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर डायरेक्टर लेवल की ओपनिंग्स अभी की डेट में मार्केट पे अवेलेबल है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझना है कि हम कैसे स्लोली, हम एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कैसे हम टॉप नॉच तक पहुंचेंगे उसके बारे में हमको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, थोड़े से कुछ स्लाइड्स में स्किप किया हूँ। तो ज्यादातर ब्रॉडली अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में ये 3 या 4 तरह की कंपनीज होती हैं जो कि या फिर क्राइटेरिया यानी लेवल ऑफ एंट्री है, यानी इस तरह के लेवल पे आप कंपनीज में इंटर करते हैं, या तो एज ए एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ एग्जीक्यूटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या गूगल एड्स से लेके, या फिर सोशल मीडिया के जरिए से कंटेंट हो सकता है, वेबसाइट मेंटेनेंस या वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेजमेंट हो सकता है, राइट। बिल्कुल परेशान ना हो कि कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिकॉज आई विल बी मेकिंग एवरी कॉम्पोनेंट, हर एक चीज को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप लोगों को उन चीजों को मैं बताऊंगा। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे, राइट। अब जैसे ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है बिजनेस को कैसे इंप्रूव करता है या बिजनेस के अंदर ये कैसे हेल्पफुल होता है। तो जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये बिजनेस को कैसे हेल्पफुल होगा, तब तक ना आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी और के बिजनेस के लिए जहां पे भी आप एम्प्लॉयड हो या फिर जिसका सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है।
सो SEO जो गूगल रैंकिंग होता है विच विल इंप्रूव विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको कहते हैं? आज की डेट में मान लीजिए कि सर्च इंजन सिर्फ गूगल की बात हम कर रहे हैं। वैसे तो पहले सर्च इंजन याहू भी होता था, MSN भी था, जो कि अब बिंग हो गया, राइट। बट एज ऑफ नाउ हम और आप गूगल को ज्यादा यूज करते हैं, तो हम गूगल की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो कंज्यूमर से रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो आप अच्छा सेल कर पाते हैं और आप बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग गेट्स यू टारगेटेड विजिटर्स विद इन आवर्स, यानी जिस टाइम पे आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंडियन टाइम में सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही आपका एड रन हो, तो आप उस टाइम पे सिर्फ अपने एड को रन कर सकते हैं। तो ये जिस टाइम में आपका ऑफिस खुला हुआ है, जिस टाइम में आप फोन ले सकते हैं, उसी टाइम पे आप अपना कैंपेन रन कर सकते हैं, राइट। और वेबसाइट एनालिटिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि कौन से सोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं, वो सारा का सारा डिटेलिंग बताता है। ईमेल मार्केटिंग 24/7, आप कभी भी ईमेल भेज सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकता है, वो रीड कर सकते हैं, वो एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, राइट। उसी तरह से है बिजनेस डिपेंडेंसी, ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, बट आप ये समझो कि ओवरऑल जो ज्यादातर बिजनेस आज की डेट में जो है वो सोलोमो, SO इज फॉर सोशल, यानी वो सोशल मीडिया पे है, LO इज फॉर लोकल, इन द सेंस पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल वेंडर। थर्ड चीज है मोबाइल, एवरीथिंग इज मोर और लेस अवेलेबल ऑन मोबाइल। तो ये एक 6 से 7 इंच, जैसे मैंने लास्ट लाइन लिखा है, मोस्ट ऑफ आवर टाइम मोबाइल 7 इंचेस इज आवर लाइफ, इन द सेंस हम ज्यादातर अपना वक्त मोबाइल के ऊपर ही स्पेंड करते हैं। दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर हैपनिंग। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह की कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में रिसेंट पास्ट में, जो कि मैंने थोड़ा सा गूगल किया, तो आप लोगों के सामने ये है कि जैसे वेबसाइट मेंटेनेंस से रिलेटेड मैंने गूगल किया, naukri.com पे जब मैंने गूगल किया तो इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग में इतने हैं, ठीक है, सेल्स के लिए है, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया जॉब्स है, इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और अगर हम देखें कि इन लोगों के पैकेजेस क्या हैं, तो आप ये देखिएगा कि एक फ्रेशर जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो एनीवेयर बिटवीन 15 to 20,000 रुपीज ही विल बी एबल टू अर्न। अगर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाता है तो एनुअल सैलरी 2 से 3 लाख का है। अगर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाता है तो 3 से 6 लाख। यानी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे नॉर्मली किसी और इंडस्ट्री में होता है, उससे लिटिल बेटर ही आपको इस इंडस्ट्री के अंदर पे पैकेज के साथ आप काम कर सकते हैं। बट व्हाट यू रिक्वायर इज, यू रिक्वायर ऑल दीज नॉलेज सो दैट आप एक बिजनेस को सपोर्ट कर सकें, सजेस्ट कर सकें कि कैसे उसके बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो ये थोड़े से, और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, अगर आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको वहां पे भी मिल जाएगा। और इस लाइन में डायरेक्टर लेवल की भी सैलरी और डायरेक्टर लेवल तक की पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये सिर्फ छोटा मोटा जॉब कर सकते हैं या छोटी मोटी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर फुल फ्लेज करियर बना सकते हैं, और राइट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लेवल टिल डायरेक्टर लेवल you can grow based on pace that you have, based on the learning that you will be able to do. अभी तक अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि more than 2000 प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने, यानी myself as a trainer have trained more than 2000 professionals. SMEs is basically small medium enterprises, छोटे और मझौले किस्म के कंपनीज को हमने उस तरह के कंपनी ओनर को हम लोगों ने ट्रेंड किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेंड किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि whatever you are trying to learn, I have already trained many more people across the country and outside the country as well. So आप लोग, और इस लाइन के अंदर करियर भी है। तो ये मैं जो कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ प्रोपेगेट कर रहा हूँ, बट इसलिए है कि आप लोग ये समझें कि ये एक बहुत ही ग्रोइंग करियर अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम सबको सीखना है और हम सबको इसको लेके आगे बढ़ना है। जब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो चूंकि आप लोग PSA के साथ इनरोल्ड हैं, तो पियरलेस स्किल एकेडमी और स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके भी आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, और वो आप लोगों को हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और आप ये मान के चलिए
कि जो ये सर्टिफिकेशंस हैं, यानी जो आपको फेसबुक या गूगल के जरिए से अगर आप इक्विप हो जाते हैं और उसके सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी अगर आप गूगल का सर्टिफिकेशन लेते हैं या फेसबुक का सर्टिफिकेशन लेते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि गूगल इंडिया की कंपनी नहीं है, ये हर कंट्री में चलता है, फेसबुक हर कंट्री में चलता है, राइट। तो ये आपके सामने ये पूरी की पूरी ओवरव्यू है कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से कहाँ तक जाया जा सकता है, और ये बहुत ही जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे इनरोल हुए हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल लीव इट टू यू गाइज। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। ओवर टू यू गाइज, आप लोग पूछ सकते हैं। স্যার, ডেটা অ্যানালিসিস একটা পার্ট আপনি বলেছিলেন, ওইটা মানে डेटा एनालिसिस बोलते की बोलছে এটা কি একটু? ये डेटा एनालिसिस क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कहाँ से लोग आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, किस लोकेशन से आया है, कितना लोग आए हैं, कितना लोग आए हैं, तो ये सारी चीजें आप जो है डेटा एनालिसिस में आप एनालाइज करके उसका डेटा निकालते हो। किस ऑडियंस, सेफ एग्जांपल, आपने एक एडवर्टीजमेंट रन किया गूगल के ऊपर, उसका एक रिस्पॉन्स आया, दूसरा एडवर्टीजमेंट रन किया, उसका अलग रिस्पॉन्स आया। अब इन दोनों डेटा को एनालाइज करके आपको ये समझना है कि किससे आपको बिजनेस ज्यादा मिलता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स टूल्स, एंड देयर आर फ्यू मोर टूल्स अवेलेबल जहां से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। And these data will be helpful for the decision makers to take decision which product to sell, when to sell, and how to sell. Thank you, sir. Anyone else? All right, guys. So we will be taking off for today. और ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ये समटाइम्स लिटिल लेट इन द नाइट, मैं इसको यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग इसको जब भी चाहें देख सकते हैं। और इन केस एनीथिंग यू कैन गो बैक, ऑलवेज गो बैक एंड रिव्यू इट। ओके गाइस? यस सर। ऑल राइट। सो कल आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ आप लोगों को लॉग इन करने में, जो भी है, बट मोर और लेस प्रैक्टिस हो गया। सो कल शार्प 7 o'clock पे आप लोग ज्वाइन करिए, और इन केस एनीवन हु हैज नॉट ज्वाइंड, हेल्प देम आल्सो टू ज्वाइन इट, एंड देन सी यू टुमारो। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं 7 बजे। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू सर।